Hello friends, welcome back to Com Connection, and I am Devesh, your friend and tutor, and here is the lecture 2 or in continuation with the lecture series of engineering mathematics, and we were doing matrices. So in the last lecture we were done up to transpose of a matrix. Now we'll see the properties of transpose. So there are various properties of transpose of a matrix. ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं ये मैंने कल आपको मतलब लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था. और प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रांसपोज की. सो लेट ए एंड बी बी द टू मैट्रिसेस. सो ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज ए. Second is A plus B whole transpose can also be written as A transpose plus B transpose. Okay, A and B being of the same order. अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. और A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. The third property is KA whole transpose is K into A transpose. Here K is a constant, any scalar, real or complex. Okay. Fourth property is AB whole transpose. A and B are multiplied. So this property is important. AB whole transpose is equals to B transpose into A transpose. The order is reversed. That is B comes before A. This is also called reversal law. Okay. Next comes symmetric and skew symmetric matrix. So what are symmetric and skew symmetric matrices? So a square matrix A is called symmetric matrix if Aij is equals to Aji. What does it means? हम सारी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कि ट्रांसपोज निकाल दें, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ही आ जाए, यानी A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज. So this is symmetric matrix. Here it is written A transpose is equals to A. If A transpose equals to A, then it is symmetric matrix. And what is skew symmetric matrix? If Aij is equals to minus Aji, that means A transpose is equals to minus A. अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव कॉमन आ जाए. Those type of matrix are called skew symmetric matrix. Next एक थ्योरम है. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, show that all positive integer powers of a symmetric matrix are symmetric. मतलब इसमें हमें बताना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर हम करें तो इट इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको कैसे प्रूफ करेंगे? लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए रेज टू पावर n, यानी a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें. दिस इज a डॉट a डॉट a डॉट a डॉट a n टाइम्स. और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a रेज टू पावर n होल ट्रांसपोज. दिस इज a डॉट a डॉट a डॉट n टाइम्स m टाइम्स होल ट्रांसपोज. This is A transpose, A transpose, A transpose, dot 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 A transpose up to n terms by reversal law. We have studied that A B whole transpose is B transpose A transpose. अगर यहाँ B की जगह A हो तो A into A transpose is A transpose A transpose. तो वही यहाँ किया है. A raised to power n whole transpose is A transpose A transpose A transpose up to n times. This is what A transpose raised to power n times, which is also equals to A raised to power n because A is a symmetric matrix. So A raised to power A transpose raised to power n is also equals to A raised to power n because A transpose is A. Okay.
Next is minor. What is minor? If Aij is an element which is in the ith row and jth column of a square matrix A, then determinant of the matrix obtained by deleting its ith row and jth column of A is called minor of Aij and is denoted by Mij. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, किसी भी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, मान लो कि हमें M11 निकालना है, यानी माइनर एट द पोजीशन 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालना है M11, तो वो कैसे निकलेगा? उस रो को और उस कॉलम को एलिमिनेट कर दो, जो भी एलिमेंट्स बचे उनका एक मैट्रिक्स बना दो, उनका एक सब मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो माइनर है। ओके, M12 निकाला है इन्होंने, M12 माइनर, M12 का माइनर क्या होगा? फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दो और 2 सेकेंड कॉलम एलिमिनेट कर दो। M12 इज दिस एलिमेंट, सॉरी, M12 इज A12, इसका माइनर यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो जो एलिमेंट्स बचे A21, A23, A31, A33, इन एलिमेंट से जो सब मैट्रिक्स बना इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो है हमारा माइनर ऑफ 1 2। ऐसे हम हर एलिमेंट का हर पोजीशन पे माइनर निकाल सकते हैं। M12 निकाल सकते हैं, M13 निकाल सकते हैं, M31 निकाल सकते हैं, M33 निकाल सकते हैं, तो ये माइनर हो जाता है। माइनर यानी वो रो और वो कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो एलिमेंट्स बचे वो एक सब मैट्रिक्स में पुट करो, दैट इज़ द माइनर ऑफ दैट पोजीशन। नेक्स्ट इज cofactors. If Aij is an element which is in the ith row and jth column of a square matrix A, then product of -1 raised to power I plus j and minor of Aij is called cofactor of Aij and is denoted by Aij. cofactor डिनोट होता है कैपिटल Aij से। तो ये निकालते कैसे हैं? cofactor होता माइनर ही है, पर -1 रेज टू पावर I प्लस जे, नेगेटिव साइन उन एलिमेंट्स पे आता है जहाँ पे -1 रेज टू पावर I प्लस जे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव आया तो माइनर एज इट इज़ हो जाएगा और नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। यानी कि अब ये -1 रेज टू पावर I प्लस जे कौन सी पोजीशंस हैं? I प्लस जे, अगर I 1 है और J 1 है यानी 1 + 1 इज़ 2 और -1 रेज़्ड पावर 2 इज़ +1, तो यानी इफ़ I प्लस J इज़ इवन देन वो माइनर एज इट इज़ हो जाएगा उस पोजीशन पे, और इफ़ I प्लस J इज़ ऑड तो माइनस साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए दे रखा है एक मैट्रिक्स, देन फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो A11 कोफैक्टर निकालेंगे -1 रेज टू पावर I प्लस जे माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 यानी 1 फर्स्ट रो एलिमिनेटेड, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेटेड, 5 6 8 9 आर लेफ्ट। इस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दिस इज 9 9 5 45 माइनस 8 6 48, -1 रेज टू पावर दिस पोजीशन इज I is equals to 1, J is equals to 1, so this position is 1 plus 1 is even 2, so -1 raised to power 2 is +1, so A11 cofactor at 1 1 is 45 minus 48, this is -3। ऐसे ही हम सारी पोजीशंस का कोफैक्टर निकालेंगे। So these are the cofactors
of all the different position of a matrix. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट तो आप सबने 12th में सीखा होगा निकालना, 3x3 मैट्रिक्स का, 2x2 मैट्रिक्स का. ओके, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट. फर्स्ट इज a determinant remains unaltered by changing its rows into columns and columns into rows. यानी A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चाहे रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज कर दो फिर भी डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बाय चेंज इन इट्स साइन. अगर दो रोज़ इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर दो, टू पैरेलल लाइन्स मतलब दो रोज़ या दो कॉलम्स, तो जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसमें माइनस साइन आ जाएगा. अगर हम यही चीज़ दो बार करते हैं यानी कि दो बार दो रोज़ चेंज करते हैं तो -1 दो बार मल्टीप्लाई होगा यानी +1 हो जाएगा. थर्ड, अ डिटर्मिनेंट वैनिशेस इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर आइडेंटिकल. दो लाइन्स पैरेलल हैं, दो रोज़ इक्वल हैं या दो कॉलम्स इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है. Fourth is if each element of a line be multiplied by the same factor, the whole determinant is multiplied by that factor. अगर हर एक एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी कांस्टेंट से, किसी फैक्टर से, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. If each element of a line consists of m terms, the determinant can be expressed as the sum of m determinant. Means एक A11 है फर्स्ट पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर उसमें m टर्म्स हैं यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो हम उसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं. पहले डिटर्मिनेंट में a लिखेंगे, बीच में प्लस साइन, दूसरे डिटर्मिनेंट में b लिख देंगे, फिर बीच में प्लस साइन, फिर तीसरे डिटर्मिनेंट में उस पोजीशन पे c लिख देंगे. तो वी कैन स्प्लिट अ मैट्रिक्स इनटू एनी नंबर ऑफ टर्म्स by just seeing how many number of terms are present in that position. Sixth is if to each element of a line be added equal multiplies of the corresponding elements of one or more parallel lines, the determinant remains same. मतलब अगर हम किसी भी if to each element of a line be added equal multiplies of the corresponding element of one or more parallel lines, the determinant remains same. इस प्रॉपर्टी का मतलब है, मान लो R1 इज़ रो 1, R2 इज़ रो 2. तो अगर हम मैट्रिक्स में चेंज करें R1 इक्वल्स टू R1 प्लस KR2, यानी R2 में हम रो 2 के हर एलिमेंट में हम K को मल्टीप्लाई कर दें और R1 को R1 प्लस KR2 कर दें तो एक नया R1 बनेगा. पर फिर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. ये करते थे ना हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ये 12th में पढ़ा है इन्वर्स निकालने के लिए, तो ये वही प्रॉपर्टी है. ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. What are singular matrix? A square matrix is a singular matrix if its determinant is 0. Singular matrix यानी determinant 0. Otherwise it is non-singular matrix. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें x की वैल्यूज़ निकालनी है और सिंगुलर दे रखा है. सिंपल है, डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो सबको आता है.
x की वैल्यू, एक इक्वेशन आ जाएगी, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी. ओके, so adjoint of a square matrix, let's see this in the next video. Okay, thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.